Hello, am I audible now? Now coming? Hello, am I audible now? Please respond if I'm audible now. Okay, great. Yes, guys. So let me introduce myself once again. So, guys, myself Himanshu Parikh, and I am physics expert at Instasol. So, am I audible now, everyone? Please respond if there is an issue now. Hello, Amit. Hello, Priyam. Yes, everyone. So, video is not playing. Then you do one thing. You just go back and try to join the session once again. It will work for you. Right. So guys, what we were doing before this, we have taken 2 lectures on simple harmonic motion, and this is our lecture number 3, right? And in the lecture number 1, I have discussed with you the basic terms like velocity, acceleration, everything. And now in the lecture number 2, I have solved some questions. Today again, I would be taking some questions based on the spring and simple pendulum. तो बच्चे बोलते हैं कि सर spring वाले questions नहीं होते हैं. So today I would be taking all the questions based on the spring and simple pendulum and all, right? उसमें rotation वाला effect भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है? So that's what we will do in today's session. So पूरा SHM कराओगे आप? Yes, I have already taken 2 lectures Priyam, so you can watch the other 2 lectures. And today also we will be solving some numericals. All right, guys. So shall we start our session? Everyone is ready? Everyone is ready? Shall we start the session? सर आप मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में हेल्प कीजिए. बिल्कुल कर रहे हैं, देखिए डेली सेशंस हो रहे हैं. सो एवरीवन इज रेडी. शैल वी स्टार्ट गाइस? ओके, सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, सी दिस क्वेश्चन. Two masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring. This is the massless spring. We have the 2 masses m1 and m2. Now when the masses are in equilibrium, what is the condition? When the masses are in equilibrium, the m2 is removed without disturbing the system. So I have removed m2. देखिए अभी क्या होगा? Spring system block, equilibrium, सब कुछ rest पे. And now what I am doing? I am removing m2 mass gently without disturbing the system. तो क्या होगा? We have to ask. They are asking us what is the amplitude of oscillation. कि जो remaining system बचा, we have m1 there now. What is the amplitude of the remaining system? So guys, try this question. This is lecture number 3, Abhilesh. So you can watch other 2 lectures. Right. Okay. So everyone try this question. We have 2 masses, m1 and m2. They are connected to a spring. I am removing the m2 mass. Now what is the amplitude of resulting motion? I hadn't tried such term a single time, sir. देखिए अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात. F is equals to minus kx. ये होता है simple harmonic motion कि if a force is acting on the particle in such a way that force is proportional to minus x, where k is the proportionality constant. 2mg by k. 2mg by k तो देखिए श्रेया 2m तो कहीं है नहीं. Are you trying to write m2g by k? Okay, Shreya is saying 2m1g by k. Okay, let's see, that's wrong answer. Other 2 lectures कैसे मिलेंगे? So for other 2 lectures, you go to the classroom tab. There is a section, past classes, previous classes. You will get all the classes there. ठीक है? Yes, everyone. So try this question. We have got only one answer from Shreya up till now. So let me write. Shreya is getting 2m1g by k. And let's see what other people are getting. हिंदी में रीड. हिंदी में देखिए हमारे पास 2 मासेस हैं. एक का मास है m1. मासेस मतलब द्रव्यमान, इतना थोड़ा मुझे पता है. m1 एंड m2. और उनको एक स्प्रिंग से हैंग कर दिया. अब क्या किया मैंने? m2 को हटा लिया. तो पूछ रहे हैं कि जो रिजल्टिंग सिस्टम बचेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा उस मोशन का. Yes, everyone. So how to solve this question? Any idea? किसी का आंसर आ रहा है? 2m1g by k या फिर m1g by k या 2m2g by k या m2g by k? Any reply?
Okay, so let's try this question. I think I have given you enough time. So super researcher has given the reply that m2g by k. So super researcher says that our answer would be m2g by k, and that's absolutely correct. Great. Start the class. Class is already started. So namaste sir, namaste Vimlesh. m2g by k. So Nandish has given the answer m2g by k. That's correct. Then Tejas Patil, that's right answer. Okay. Then Nikita also says m2g by k. क्रिश का भी आंसर आ गया है. चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें. तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे मान लो एक स्प्रिंग है अभी हॉरिजॉन्टल में, समझते हैं कॉन्सेप्ट को. अब फिर ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, देखना. ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. अब एक स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन स्प्रिंग है, एक ब्लॉक उससे कनेक्टेड है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक बाय सर्टेन डिस्टेंस 2 मीटर लेट्स से. ठीक है, तो क्या होगा, अब वहां से जाके मैंने उसको छोड़ दिया, तो जैसे मैंने उसको छोड़ा इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. सही बात है या नहीं? ओके, सो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दैट्स द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. अब ये जो 2 मीटर आपने डिस्प्लेस किया, यही इसका एम्पलीट्यूड होगा. क्यों, बताओ कोई रीजन वाई इट वुड बी 2 मीटर इन दिस केस. हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ब्लॉक कनेक्टेड, खींच दिया ब्लॉक को, अब छोड़ दिया, तो रिजल्टिंग मोशन जो होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, जितना डिस्टेंस से आपने उसको खींचा वही हो जाएगा. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत आसान है कि सर देखिए आपने उसमें इनिशियली एनर्जी स्टोर कर दिया है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वही अब बाद में काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी ओवरऑल कंजर्व रहेगा. तो वहां से जब आप एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो वो उसका मैक्सिमम पोजीशन होगा, तो फिर से ऐसे आएगा वो, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक जब वो गया तो यहां तक कितना जा सकता है, 2 मीटर ही जा सकता है, बिकॉज उसके पास एनर्जी ही उतनी है. समझ में आ रही है बात, यस और नो? चलिए, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया. वेरी गुड अमित सिंह, अमित हैज गिवन द राइट आंसर. ठीक, चलिए, तो अब यही सेम चीज यहां पे हो रही है. तो पहले एक काम करते हैं कि इनिशियल सिचुएशन में इसका देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां बन रहा है. ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा स्प्रिंग, ये रहा m1 मास, ये रहा m2 मास. अब ये स्प्रिंग क्या होगा, कुछ एक्सटेंड हो जाएगा. क्यों एक्सटेंड होगा, सोचिए, क्योंकि नीचे m1 और m2 दो मासेस है भाई, इसलिए एक्सटेंड हो जाएगा. कितना एक्सटेंशन होगा, तो अब इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज जीरो, साम्य अवस्था बोलते हैं हिंदी में. तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड g इज इक्वल्स टू kx. m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड g इज इक्वल्स टू kx. यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड g इज इक्वल्स टू kx, राइट? वेरी गुड. सो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड g इज इक्वल्स टू kx. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रहा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो x का वैल्यू हो गया है m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड g डिवाइडेड बाय k. अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पोजीशन से m2 को हटाऊंगा, तो हटा दो m2 को, बिल्कुल हटा दो. जैसे ही m2 को हटाया, यस बिल्कुल होती है डेली क्लासेस अभिलेश, बिल्कुल डेली. m2 को जैसे ही हटाया, अब स्प्रिंग फोर्स कितना था, kx, और नीचे वाला फोर्स कितना हुआ, m1g. नहीं समझ में आया, फिर से देखो. स्प्रिंग फोर्स अभी भी कितना है, राइट आफ्टर जैसे ही m2 को हटा दिया, स्प्रिंग फोर्स कितना है, kx विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड g, और नीचे फोर्स कितना है, m1g. तो कौन जीता, ऊपर वाला कि नीचे वाला? अब कोई बोल रहा है सर हमेशा ऊपर वाला ही जीतता है. ठीक, ध्यान से समझिए, इंग्लिश समझ नहीं आती, हिंदी में समझा रहे हैं. ठीक, देखिए ऊपर कितना फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड g. नीचे कितना फोर्स है, m1g. तो कौन विन, किसकी जीत हुई, ऊपर वाले फोर्स की. कितनी जीत हुई, m2g से जीत हुई. नहीं समझ में आया? तो अब देखिए क्या होगा कि ये m1 पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जंप करेगा वो, और उसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी. अब और नई इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां आएगी, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी जहां पे m1g
कि एक्स डैश कुछ होगा उसका इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहाँ कहीं आ जाएगी। कहाँ पे? यहाँ कहीं। ये m1 कहीं यहाँ चला जाएगा और पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पे है। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले ब्लॉक था, अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो याद आया, मैंने आपको भी एक एनालॉजी दी थी कि स्प्रिंग को अगर मैं एक्सटेंड करके छोड़ दूँ, उसके बाद में जितना एक्सटेंशन दिया था वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो देखिए, इस ब्लॉक को यहां से लाकर ऐसे छोड़ा होगा मैंने, समझ में आ रही है बात? इस ब्लॉक को ऐसे खींच दिया, ऐसे समझो इस चीज को, इस ब्लॉक को ऐसे खींच दिया और अब छोड़ दिया। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, क्या यही इसका एम्पलीट्यूड होगा? बोल दो हाँ या ना, यस सो नो, क्या यही इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा? राइट? यस ऑल ऑफ यू? ठीक है, कुछ लोगों ने कहा है यस सर, बिल्कुल सही बात है। जो नहीं कह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने एक एनालॉजी दी थी कि आप स्प्रिंग को खींच दीजिए फिर उसको छोड़ दीजिए, तो जिस तरह अमाउंट से आपने उसको खींचा है वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए, तो इसमें क्या हुआ कि इस ब्लॉक की नई इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है, वो कितना है? m1g/k। पुरानी थी यहाँ, तो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आपका एम्पलीट्यूड होगा भैया। ठीक, तो अब देखिए, x डैश में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस इज योर x एंड x डैश इज व्हाट? x डैश इज m1g/k। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब x माइनस x डैश, इफ यू डू x माइनस x डैश हियर, व्हाट यू विल गेट? m2g/k, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर। m2g/k इज द राइट आंसर। समझ में आया? IIT JEE का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। समझ में आ गया? m2g/k। Everyone understood this question? How I am getting m2g/k here? Maximum displacement from the mean position is known as amplitude. So this is the mean position, new mean position, equilibrium position. This was the extreme position, right? Why this is the extreme position? Because I am releasing the block from here. The initial velocity of block is 0 here. I am releasing the block. So this is the extreme position. Distance between this and this is your amplitude. Clear everyone? वेरी गुड, समझ में आ गया। AK को भी समझ में आ गया, RP को भी समझ में आ गया, एमिनम को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सनी कुमार को भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स वुड बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ग्रुप। और उसका मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिंक बताया था, विभोर सर ने भी बताया था। लिंक है t.me/instaJEE। ठीक है, वेयर इज विभोर सर? विभोर सर नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। ठीक, तो विभोर सर से भी मिलवा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार उम्दा क्वेश्चन। आज कौन सी स्टैंडर्ड की क्लास है? ये क्लास 11th-12th के टॉपिक हैं। Praveen saying, sir, please in English. Okay. Sir, my video is not playing. Then you do one thing, you go back and try to join the session once again. It will work for you definitely. So try this question now. अब्दुल पूछ रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बताइए, क्वेश्चन बताइए, आप इंस्टासोल ऐप पे डाल दीजिए। एक क्या आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे? आप वहाँ पे आंसर भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, आपकी प्रैक्टिस भी होगी आंसर करने से। तो मैं ये क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। वी हैव ए ब्लॉक P, नीचे वाला, उसका मास है स्मॉल m, is placed on a frictionless horizontal surface, and we have another block Q which has the same mass P m. This is kept on the lower block and connected to a wall, सीधे नहीं, with the help of a spring, right? The spring constant is K. Mu s is the coefficient of friction between the surface of P and Q. This is the friction between P and Q. The blocks move together, performing simple harmonic motion of amplitude A. The maximum value of friction force between P and Q is. Yes, all of you? So, what would be the maximum value of friction force? I'll give you options also for this question. Let me give you options also for this question. Option A, mu s mg.
ऑप्शन बी के ए, ऑप्शन सी के ए बाय 2, ऑप्शन डी 0। चलिए बताइए, ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट? बताइए विच वन इज करेक्ट, ए बी सी डी। मंदीश ने लिख दिया है ए, जयनाम सेज सी, तनुज से सी, पटेल जितेंद्र आंसर आ रहा है सी, कृष का आंसर आ रहा है ए। तो देखिए फाइट चल रही है ए और सी के बीच में। सर क्या आप टेलीग्राम वाले ऐप का लिंक सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको अभी टेलीग्राम ऐप का लिंक मैं चैट बॉक्स में सेंड कर देता हूं। मैं आपको बता भी देता हूं लिंक है t.me/instajee। ठीक है, मैं अभी टाइप भी कर देता हूं। सो फाइट चल रही है ए और सी के बीच में। कुछ लोगों का आंसर बीच में डी भी आ गया है। चलिए, तो आपको ए और सी के बीच में फाइट चल रही है, देखते हैं कौन सा सही है। तो मैं बता दूं, जिन्होंने कहा है सी, चलिए अभी एक आंसर आने लगा है। कृष्ण ने कह दिया ए सर, वैष्णवी ने कहा ए। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार, ए ओनली। द बोस ने कहा सर आंसर इज ओनली ए। श्रेया ने कहा सर ए। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ए, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। जिनका आंसर आ रहा है डी और बी, वो भी गलत है। और जिनका आ रहा है आंसर सी, वो बिल्कुल सही है। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। एंड नाउ लेट्स सी व्हाई सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक कंडीशन लिखी हुई है कि द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक पी एंड क्यू। देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक पी एंड क्यू। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही मैं पी एंड क्यू को डिस्प्लेस करूंगा, एज आई डिस्प्लेस दिस सिस्टम पी एंड क्यू बाय सर्टेन डिस्टेंस एक्स, ऐसे तो चेक करेंगे तो क्या होगा कि P और Q एक साथ मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि Q थोड़ा सा कम चलेगा बिकॉज उस पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, P थोड़ा ज़्यादा चलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब किसी ने मेरे से पूछा कि सर नीचे जब कोई फ्रिक्शन नहीं है नीचे वाले ब्लॉक पे, तो ये ब्लॉक चल कैसे रहा है? चलिए, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें FBD। अब इसको जब आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज अवर ब्लॉक Q P and this is our block P Q. Okay, this is a spring. ठीक, इनिशियली ये यहां कहीं था, मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहां ले आया। दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। ठीक, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। ओके ओके सर सी, हाँ सी इज द राइट आंसर। देखिए, इनिशियली दिस इज द सिचुएशन, यहां पे था, अब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस करने पे होगा क्या, इस क्यू ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? के एक्स। चलिए इसको लिख देते हैं ब्लू पेन से, दिस इज के एक्स। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक क्यू इज के एक्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन। व्हाई? क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन, तो स्प्रिंग उसको खींच रहा है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पे फोर्स कितना लगा? के एक्स। अब जैसे ही क्यू पे फोर्स लगा के एक्स, तो उसको कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। किधर? पीछे की तरफ। यस और नो? कितना फोर्स लगेगा पीछे की तरफ? फ्रिक्शन। कितना लगेगा वो हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पे एक चीज, एक तो देखिए मैक्सिमम टर्म क्यों यूज किया है, और दूसरा फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है।
अब जो बच्चे आंसर कर रहे हैं म्यू एम जी, तो उनको बता दूं म्यू एम जी तो लिमिटिंग वैल्यू होती है ना फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वो नहीं पूछा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन पी एंड क्यू एट दिस इंस्टेंट, कि अभी कितना वैल्यू है, हमसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी, वो नहीं पूछा। अगर दैट कैन भी पूछा होता तो फिर म्यू एम जी राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो दैट कैन भी नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन दिस केस, राइट। चलिए तो अब देखिए, इस पे फोर्स लगेगा के एक्स पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा आगे की तरफ, तो यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ से पी पे भी आगे की तरफ फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, यस और नो। अब ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो जितना मैक्सिमम ये होगा के एक्स, जितना मैक्सिमम के एक्स होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनके बीच में स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स कहां होगा, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे, समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे कि देखिए के एक्स माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्यू और पी का, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्यू और पी का, और पी के लिए क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यस और नो। फॉर द ब्लॉक क्यू आई विल राइट दैट सर के एक्स फोर्स लेफ्ट में, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, सो के एक्स माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एंड फॉर द लोअर ब्लॉक there is only one force, F is equals to ma, yes or no? So what I'll say, that F is equal to ma is one equation and kx minus F is equal to another equation, yes or no? अच्छा, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। यहां से हम क्या, अच्छा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है a, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट्स a, सो x का वैल्यू यहां पे a डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, एम ए का वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, कितना है एफ, तो यहां से के ए माइनस एफ इज इक्वल टू एफ, सो व्हाट यू विल गेट, एफ इज इक्वल टू के ए बाई टू, तो वो आंसर आ गया, ठीक। सो समझ में आया क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए म्यू एम जी आंसर नहीं होगा, वाई म्यू एम जी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी, बट जरूरी थोड़ी ना कि वही होगा आंसर, वो तो मैक्सिमम रेंज है कि वहां तक जा सकता है फ्रिक्शन, बट इस केस में कितना जा रहा है, इस केस में उतना ही जाएगा जितना एम्पलीट्यूड बोलेगा, जितना एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, ये वाला फोर्स लग रहा होगा, तो वो कितना होगा के ए। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इस इंस्टेंट पे म्यू एम जी नहीं होगी, वो कितनी होगी वो इस रिलेशन से निकालेंगे। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, समझ में आया सभी को? सो के ए बाई टू इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम है? सो एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू ए, एक्स का वैल्यू ए क्यों रखा, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करेंगे, ठीक। फिर से समझाइए, देखिए आप ध्यान से समझिए, ये इनिशियल सिचुएशन था, अब इस सिस्टम को मैं इधर ले जा रहा हूं, दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, दे मूव टुगेदर, तो क्यू पे फोर्स कितना लगेगा, के एक्स इस तरफ, तो फ्रिक्शन ने कहा कि मैं तो अपना काम करूंगा, फ्रिक्शन ने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया क्यू पे, तो पी ने कहा कि मुझ पे भी फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से आगे की तरफ, ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। तो के एक्स माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, अब इसको इधर खींच दिया है तो वापस इधर जाने की टेंडेंसी होगी, तो के एक्स माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और एफ इज इक्वल्स टू एम ए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, क्यों, क्योंकि सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है पी और क्यू का, ठीक। अब कुछ ये पूछते हैं कि सर म्यू एम जी आंसर क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है कि जब इसको खींचोगे तो के एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एक्स पहले 0 था, अब थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, और बढ़ गया, तो जैसे जैसे आप सिस्टम को खींच रहे हो एक्स का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा ये फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, जितना एक्स मैक्सिमम हो सकता है, और एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, एम्पलीट्यूड तक हो सकता है। समझ में आई बात? अब वो इक्वेशन डाल दो, x इज इक्वल टू ए, आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ गया सभी को? समझ में आया सभी को? Yes everyone, understood? Any doubt? So we'll go to next question now. Right. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
सो ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि वी हैव ए सॉलिड सिलेंडर, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, इसका मास है स्मॉल m, इट इज अटैच्ड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग with a force constant K. This has the constant K. The cylinder can roll without slipping along the horizontal plane. Calculate the time period for center of mass of the cylinder when displaced from the mean position. सर जवाब तो दीजिए, किस चीज का जवाब दीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए। ओके, सो क्या किया, सिलेंडर को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहां से, तो क्या होगा, स्प्रिंग उसको खींचेगा फिर से। लेट्स से सिलेंडर यहां आ गया, अब क्या होगा, स्प्रिंग ने इसको इधर खींचा तो फिर इधर चला गया, बट जब यहां पहुंचेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फिर उधर चला जाएगा वो, सॉरी जब यहां पहुंचेगा तो उसके बाद एक वेलोसिटी होगी तो फिर वो उधर चला जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा इसे। तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा ये बताना है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर KA/2, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है KA/2। अमीन खान का आंसर आ चुका है वैसे। अमीन खान का आंसर आया है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3m/2k। अच्छा, एंड लेट्स सी, लेट्स अदर पीपल सोल्व दिस क्वेश्चन, देखते हैं क्या वो सही है या नहीं। थैंक यू सो मच प्रियम, InstaSolve is the best app, thank you so much। सही है बिल्कुल। So Urvashi has given the answer, T is equal to 2 pi under root 3m/2k। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, T is equal to 2 pi under root 3m/2k। So Urvashi and Amin has given the answer 3m/2k। राजन का भी आंसर आ गया है, नंदीश का भी आंसर आ गया है। अब मेरा क्वेश्चन है नंदीश, राजन और अमीन से और उर्वशी से कि बताइए क्या मेथड किया आपने। जयनाम से भी आंसर आ गया है, सेम आंसर 2 पाई अंडर रूट 3m/2k। तो जयनाम बता सकते हो कैसे किया क्वेश्चन, या फिर कोई और बताइए कैसे आएगा आंसर। ये रानी ने भी आंसर दे दिया है 2 पाई अंडर रूट 3m/2k। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पर कैसे आरपी गुरु, यही तो मैं पूछ रहा हूं, कैसे करेंगे 2 पाई रूट 3m/2k कैसे आएगा, क्या मेथड यूज करना चाहिए यहां पे, कोई बता सकता है। साक्षी का भी सही आंसर है। सो मैनी पीपल हैव गिवन द राइट आंसर। साक्षी ने सही बोल दिया, जयनाम ने सही कहा, श्रेया ने सही कहा है, पर कैसे। torque about point of contact is equal to LA। What is LA? What is LA? ग्राउंड पॉइंट, ठीक है। टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो वहां पे स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क लेंगे, ठीक बात है। ओके, देन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ω²x। अच्छा, तो वहां से आपने रिलेशन डेवलप किया होगा और फिर आपने डिराइव किया होगा, ठीक है। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, वैसे भी कर सकते हैं, वो भी सही अप्रोच है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, वैसे लिख दीजिए और उसके बाद में फिर आप एसीएम इक्वल टू ω² माइनस ω²x, ये और एसीएम इक्वल टू आर एल्फा होगा क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है, वो भी ठीक है। अच्छा, अभी किसी ने कहा कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बहुत बढ़िया, राजन ने भी
कैच कर लिया क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। सर क्लासेस कब तक होती है? 10:30, 9:30 टू 10:30। अमीन खान, ठीक है, अमीन खान का भी सेम अप्रोच है जो जैनाम ने किया है, वो भी सही है, बिल्कुल बढ़िया। अब चलिए मैं सोल्व करवाता हूँ ये क्वेश्चन। यस एवरीवन, शुड आई सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ? चलिए, तो यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। और कैसे करेंगे तो यहां देख लेते हैं। तो अब इसका मैकेनिकल एनर्जी लिखना है एक्चुअली, ठीक। अब मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा कि जैसे इनिशियल सिचुएशन था, ये ऐसे स्प्रिंग कनेक्टेड था, ठीक। अब यहां से डिस्प्लेस करके इसको कहीं यहां ले आए, ठीक। और कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया हमने? एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे एनर्जी लिखेंगे? एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यस श्रेया बिल्कुल करेक्ट। एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक होगा काइनेटिक एनर्जी, बट ये रोल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाला, तो बस वही लिख रहा हूं मैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए कि टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसको टी से लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बात सही है? टोटल एनर्जी इतना होगा, राइट? सो दिस इज द टोटल एनर्जी। नाउ we have given one condition that V is equals to R omega. Yes or no? One condition is given which is V is equals to R omega. And what will you write here? Omega will become V by R. Half k x square plus half m V square plus half I V square upon R square. Yes? I V square upon R square. अच्छा, अब देखो इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। इफ आई डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, है ना, बिकॉज कोई फ्रिक्शन है नहीं, कोई डिसिपेटिव फोर्स है नहीं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है तो इसको भी मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को। चलिए, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा देखिए, इस साइड बन जाएगा, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, तो ये हो जाएगा 2x और dx बाई dt, तो क्या बनेगा v। तो क्या लिखेंगे k x v। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद में सर वो तीन एनर्जीज क्या हैं? वो तीन एनर्जीज मतलब है वो मैकेनिकल एनर्जी हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करके। ये है काइनेटिक एनर्जी, रोल कर रहा है, तो ट्रांसलेशन भी होगी, रोटेशन भी होगी, ठीक। तो ये हो गया के एक्स वी प्लस इसका भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म को क्लब कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज दोनों में वी स्क्वायर है। तो देखिए कैसा होगा, इस तरह का कुछ होगा, आई बाई टू प्लस एम बाई टू। अच्छा, आई 2r स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, 2r स्क्वायर प्लस एम बाई टू। क्लब कर दिया मैंने, इन दोनों में से वी स्क्वायर कॉमन ले लिया और अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 2v dv by dt, that is acceleration. 2v dv by dt, that is acceleration. Clear? अच्छा, अब देखो ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। क्यों होगा जीरो के इक्वल? बिकॉज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। अच्छा, अब देखो यहां से I का वैल्यू क्या होगा? इट्स ए सॉलिड सिलेंडर, तो जितना डिस्क का होता है उतना ही सॉलिड सिलेंडर का होता है, तो वैल्यू क्या होगा? mr स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ mr स्क्वायर बाई टू डाल देते हैं। जैसे ही आप mr स्क्वायर बाई टू रखेंगे तो देखिए के एक्स वी प्लस
ये हो गया m/4, m/4, मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं तो ये बनेगा m/2 और r² कैंसिल आउट, ये रहा m बिकॉज 2 मैंने कॉमन ले लिया जो इससे कैंसिल आउट भी हो जाएगा तो va, ठीक, इज इक्वल टू 0, ठीक। ये बन गया 3m/2, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं कहीं, इसको यहां लिख लेते हैं। ये कितना हो गया कि kxv प्लस 3mv डिवाइडेड बाय 2 एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, v से v कैंसिल आउट, तो यहां से आएगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2k/3m इंटू एक्स। समझ में आ गया सभी को? तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, इसलिए मैंने a इक्वल टू -ω²x लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो टर्म होता है कंपेयर करवा लो एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² से, ये SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ये ω² हो गया 2k/3m, तो यहां से टाइम पीरियड लिख दीजिए, कितना होगा 2π√3m/2k, बस वही आपका आंसर है। समझ में आया? एनी अदर मेथड ऑफ सॉल्विंग इट सर? तो एक जैसे जैनाम ने बताया था कि सर टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा होता है, ठीक, और वहां से ACM इज इक्वल टू I अल्फा R मल्टीप्लाइड अल्फा भी लिख सकते हैं, तो वैसे भी आप A इक्वल टू ω²x फॉर्म में आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया क्वेश्चन? सर व्हाट इज करेक्ट, v इज इक्वल टू E/2m और v इक्वल टू E/m? मैं समझा नहीं यहाँ पे टाउ और वो सब क्या है, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए उसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए। So try this question everyone. So in this question we have a particle whose frequency is 10 Hertz, okay, and the particle is suspended from a vertical spring. At the highest point of its oscillation, the spring is unstressed. The maximum speed of the particle is, ठीक। तो देखिए इसका डायग्राम तो बहुत सिंपल है, मतलब हर कोई बना सकता है इसका डायग्राम, कि एक स्प्रिंग है, ठीक, ऐसे स्ट्रेस्ड पोजीशन में है वो इनिशियली, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब उसको ऑसिलेशन करवा दिया, और ऑसिलेशन किस तरह से हुआ कि इसके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन पे स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड हो जाती है, इसका मतलब वो उसकी नेचुरल लेंथ पे चला जाता है, ठीक है। तो इसका नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ होगा मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसका स्ट्रेस्ड पोजीशन है, ठीक। तो नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ ऊपर होगा, तो बताना है कि वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन पे, ठीक। तो ये रहा इसका एक्सट्रीम पोजीशन, और ये रहा इसका सॉरी ये इसका है इक्विलिब्रियम पोजीशन, सॉरी ये वाला है इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, और ये रहा इसका नेचुरल पोजीशन। और नेचुरल पोजीशन ही क्या है, नेचुरल पोजीशन ही एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। You think data is insufficient? No, data is sufficient, Janam. You don't need any other data. उसी के लिए तो आपको कंडीशन दिया हुआ है, देखिए, the particle is suspended from vertical spring at the highest point of its oscillation, the spring is unstressed. ये बात को ध्यान से देखिए आप, अब हो जाएगा। तो डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन दिया हुआ है, बस दिख नहीं रहा है वो,
कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन? जिसने ये बात क्रैक कर लिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन कैसे निकलेगा, उससे तो एक क्वेश्चन 30 सेकंड में हो गया। सर आपके वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर शो नहीं हो रहे हैं, व्हाट आई डू? एक बार ऐप को है ना आप अपडेट कर लीजिए, सब कुछ दिखने लगेगा बढ़िया से। ऐप को अपडेट कर लो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है टीना जी, तो एक बार अपडेट कर लीजिए, सब बढ़िया चलेगा। बाकी सारे लेक्चर्स भी देख लो। अब एक क्वेश्चन है, पता नहीं कहां से उठाया है, बट क्वेश्चन बढ़िया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी दे दिया 10 हर्ट्ज, पार्टिकल को स्प्रिंग से हैंग कर दिया, बोल रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ऑसिलेशन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। मैक्सिमम स्पीड पूछ लिया। अब मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, a मल्टीप्लाइड ओमेगा। अब a कितना लिखें तो यहां पे पता नहीं चल रहा। जयराम का आंसर आ चुका है G/10 पाई, जो कि सही है या नहीं देखना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है वो गलत है, G नहीं आएगा आंसर में। G तो नहीं आना चाहिए, मतलब आपका आंसर आ रहा है 1/पाई, तो 1/पाई शायद आंसर नहीं है, गलत है वो। 1/200 पाई। हाँ जयराम, G इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। शायद कहीं कैंसिल आउट करने में कुछ गलती कर दी आपने। श्रेया ने कहा 1/200 पाई। देखते हैं, 1/200 पाई तो रॉन्ग आंसर है। चलिए मैं सोल्व करवाता हूं क्वेश्चन को। V इक्वल टू होता है A ओमेगा, सबको पता है ये बात। V इक्वल टू होता है A ओमेगा। सर ओमेगा तो दिया हुआ है बट A नहीं दिया हुआ, तो मैंने बोला A तो दिया हुआ है बस दिख नहीं रहा। कैसे कि यहां पे देखो mg इज इक्वल टू क्या होगा, kx होगा कि नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, जो कि इस क्वेश्चन में नेचुरल पोजीशन भी है। तो एक्सट्रीम पोजीशन ही नेचुरल पोजीशन है, तो नेचुरल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच, मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, वही तो आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो कितना लिखेंगे कि kx या ka इस क्वेश्चन में इज इक्वल टू mg। सो a का वैल्यू कितना आ गया, mg/k, बोल दो हाँ। a का वैल्यू कितना आ गया, mg/k, सही बात है नहीं? तो a की वैल्यू आ गई mg/k। हाँ 1/2 पाई किसी का आंसर आया है, दैट्स करेक्ट। शंभू जी का आंसर आया 1/2 पाई, राजन जी का भी आंसर 1/2 पाई, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट आंसर। सो a का वैल्यू यहां डाल देते हैं। सो v इज इक्वल्स टू mg/k मल्टीप्लाइड ओमेगा। अब किसी ने कहा कि सर m नहीं दिया हुआ, k नहीं दिया हुआ, कैसे करें? तो मैं बोला चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है, यहां डाल दो k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो v कितना आएगा, mg/m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, और एक ओमेगा पहले से था, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, और ये m से m कैंसिल आउट, और ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई इंटू 10, 2 पाई इंटू 10, 2 पाई f। तो कैसे लिखेंगे कि v हो जाएगा g/2 पाई इंटू 10, और ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 पाई। सो 1/2 पाई इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड होगी 1/2 पाई। समझ में आया? तो जयनाम ने एक गलती की थी, मैंने कहा था कुछ कैंसिल आउट करने में गड़बड़ी हो रही है, तो 1/2 पाई इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब एक अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, उस पर चलते हैं। कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में पूछ लो। देखिए ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बस आपको हिंट देख, वर्ड लैंग्वेज देखना है आपको, ठीक।
के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर कैसे, उसके लिए तो आपको एसएचएम पढ़ना पड़ेगा, अभी भी लेट नहीं हुई है, आप पढ़ सकते हो अभी भी। के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर, ये तो हम पढ़ते ही हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हेलो अकी, हाउ आर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब आ गया रोटेशन वाला क्वेश्चन, तो फिर से थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलेगा इसमें, बट सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, उसको सस्पेंड कर दिया फ्रॉम ए पॉइंट r/2 अबव इट सेंटर। डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, ठीक। ये रहा सेंटर, दिख गया सेंटर, ये रहा, इसके ऊपर एक पॉइंट है r/2 डिस्टेंस पे, ये रहा, ठीक। इसको ऐसे बना देते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे, ये तो रेस्ट पे है। मैंने कहा ऐसे नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में वैसे क्या करते हैं कि डिस्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो ऐसे, ठीक। डिस्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और उसके बाद क्या करो कि वो छोड़ दो, तो वो ऐसे 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 चलने लगेगी। ये डिस्क है मान लो, इस तरह से अपने हाथ को ही डिस्क बना लेते हैं कि ये डिस्क है मान लो, अब इसको ऐसे करके थोड़ा छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है भाई, ठीक। तो इसका ऑसिलेशन बताना है आपको। हिंदी में तो बोल रहा हूं मैं, इतना बढ़िया हिंदी बोल रहा हूं। हाय समृत गौरव, कैसे हैं आप। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आते ही आपके लिए एक क्वेश्चन ले आया हूं मैं, रोटेशन से मिक्स है थोड़ा सा इसमें, कि डिस्क है उसको थोड़ा सा रोटेट करवा दिया और छोड़ दिया। बताइए कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं लेना अपने को। रेडियस r है, r/2 पे सस्पेंडेड है, तो ये डिस्टेंस है r/2। लिख देता हूं मैं यहां पे r/2, रेड कलर से लिखते हैं r/2। चलिए बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। अच्छा, रोटेशन मोशन में क्या होगा, जैसे इसमें लिखते हैं f इज इक्वल टू माइनस के एक्स या a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। रोटेशन में ये प्रूव करना होता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। बिल्कुल रोटेशनल एनालॉग ले लिया। ये प्रूव करना होता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसके रोटेशन का वो माइनस थीटा के साथ होगा प्रोपोर्शनल, और उसका जो कांस्टेंट होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ओमेगा स्क्वायर का है हमें इंतजार। पाई इज रॉन्ग आंसर। तो जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन को हिंदी में बताइए। मैं समझा देता हूं, हिंदी में मैं बता तो नहीं पाऊंगा बट क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक डिस्क है, ठीक है, और डिस्क को इस पॉइंट से हमने सस्पेंड कर रखा है r/2 डिस्टेंस ऊपर, ठीक। अब इसको घुमा दिया ऐसे, थोड़ा सा स्मॉल रोटेशन दे दिया, ठीक है ना। स्मॉल रोटेशन की बात कर रहे हैं, बड़े रोटेशन के लिए तो ऐसे चम होगा भी नहीं है। और फिर छोड़ दिया, ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ठीक। और फिर उस जो घूम रहा है उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए। जैनाम ने फिर से एक छोटी सी गलती कर दी है। वैसे आंसर क्लोज है मतलब आपका जैनाम, पर थोड़ा जल्दी कर दिया शायद आपने, इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। एक बार चेक कर लीजिए, आंसर थोड़ा सा गलत है। जैनाम ने आंसर अब बिल्कुल सही नहीं, अभी भी सही नहीं किया। अमीन खान का आंसर आ गया है। तो एक कॉम्पिटिटर और है हमारे पास, अमीन खान, जिन्होंने कहा है 2π√3r/2g, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बधाई हो अमीन खान को। श्रेया का भी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, √3r/2g। बहुत ही शानदार। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह एक क्वेश्चन में, जैसा मैंने आपको बताया, यू डिस्प्लेस दिस डिस्क फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन, जिसको हम बोल सकते हैं इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और उसके बाद क्या होगा, ये डिस्क थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो जाएगी। तो अब सिचुएशन क्या होगी, ये पॉइंट तो फिक्स है भैया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हिलने वाला भी नहीं है, ठीक। अब ये पूरा का पूरा डिस्क इस पॉइंट के पॉइंट से चला जाएगा, सही बात है या नहीं। तो ये पॉइंट का यहां चला जाएगा,
सही है ना, ये पॉइंट कहीं यहां चला जाए। कौन सा वाला पॉइंट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसका नाम है राम या श्याम, कुछ भी ले लो, ये पॉइंट ओ यहां से बढ़कर यहां चला जाएगा। ये वाली डिस्टेंस अभी भी r/2 है, सही है नहीं, ये वाली डिस्टेंस अभी भी r/2 है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक लगा लेते हैं। देखिए ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अच्छा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो एक बात बताइए, तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है r/2 और हाइपोटेनियस है ये वाला डिस्टेंस, कुछ x बोल देते हैं इसको। तो यहां से x का वैल्यू कितना आया, सही लिखा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा अब साथ में टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा। अच्छा अब यहां पे हाँ जय नाम का बिल्कुल सही आंसर है, √3r/2g, बहुत सही। साक्षी ने भी सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा। अब देखिए सिंपल सी बात है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आई अल्फा, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दीजिए सर, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दीजिए। तो टॉर्क लगेगा किसका, ग्रेविटी का, टॉर्क किसका लगेगा, ग्रेविटी का। वैल्यू क्या होगी, r×f। तो कैसे लिखेंगे कि सर ये वाला डिस्टेंस, देखो टॉर्क को लिखने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास वेक्टर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है तो यू कैन राइट r×f। इफ यू हैव इंफॉर्मेशन इन r परपेंडिकुलर विच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ये रहा फोर्स नीचे की तरफ, ये रहा r, तो r परपेंडिकुलर f भी लिख सकते हैं, या फिर इफ यू हैव r/f परपेंडिकुलर देन यू कैन राइट दैट डेफिनेशन ऑल्सो। तो ये वाला डिस्टेंस का मुझे है इंतजार, जो मैंने पहले से ही निकाल लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा कि थीटा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है r/2, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, परपेंडिकुलर होगा ये वाला जिसका है वैल्यू x, हाइपोटेनियस है r/2। सो x का वैल्यू कितना होगा, r/2 साइन थीटा, सही है ना, x का वैल्यू हो जाएगा r/2 साइन थीटा, क्लियर। अच्छा टॉर्क कितना होगा, mg/2 साइन थीटा एंड विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो mr²/2 नहीं लिखना है, बिकॉज mr²/2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो स्टैंडर्ड एक्सिस है। यहाँ पे mr²/2 नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है हमें, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट, इसको नाम दे देते हैं कुछ p, तो p के अबाउट निकालना है, तो वो होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I इज इक्वल्स टू ICM, सेंटर ऑफ मास जो पास करता है, ये रहा सेंटर ऑफ मास, दैट इज mr²/2 प्लस मास टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, r/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, mr²/4, तो ये बन जाएगा 3mr²/4, यहां वैल्यू डाल दीजिए 3mr²/4 मल्टीप्लाइड अल्फा। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव साइन क्यों नहीं दिया, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा क्योंकि ये टॉर्क जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो, और फॉर स्मॉल वेरिएशन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो फॉर स्मॉल वेरिएशन साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जब आप साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा लिखोगे तो ये m से m कैंसिल आउट, ठीक, और ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो यहां से आएगा अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g अपॉन 3r², और उसके बाद आपको कंपेयर करवाना है ओमेगा स्क्वायर से, तो वहां से आपके पास ओमेगा आएगा, ओमेगा के बाद आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, समझ में आ गया, बिकॉज t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, क्लियर एवरीवन, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, नो डाउट, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा आसान ही है, ये शायद आपने पहले किया होगा, बट इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं, तो थोड़ा जल्दी से कर लीजिए।
आरआरबी ग्रुप के लिए आप एक काम करो, इंस्टासोल पे आपको जो भी डाउट आ रहा है सब डालते जाओ, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको। जो भी डाउट आ रहा है स्पेसिफिकली वो डाउट आप डाल दीजिए ग्रुप पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। नहीं, ये देखो जल्दी में गलत लिख दिया श्रेया ने, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के यूनिट, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है श्रेया, ये तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, आप कैसे लिख रहे हैं। वैसे मुझे समझ में आ गया आप लोग आंसर सही लिख रहे हैं, शायद वो जी लिखना आप भूल चुके हैं, कोई बात नहीं। तो 2 पाई अंडर रूट एम जी बाई के इज द राइट आंसर। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले बनाओ। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, ये ब्लॉक इसको नीचे खींच रहा होगा स्प्रिंग को, ठीक है, तो कहीं यहां होगा, ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट होगा छोटा सा, इसका कितना होगा, mg के इक्वल होगा। क्यों है kx, इसमें टेंशन फोर्स बिल्कुल kx के बराबर होगा, टेंशन फोर्स बिल्कुल kx के बराबर होगा, तो टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू kx, ठीक। इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो kx इक्वल टू mg, तो x इक्वल टू mg बाई k, ये तो हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात, ठीक। अब क्या करते हैं SHM को पहचानने के लिए, SHM की पहचान है कि थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दो x डैश अमाउंट से, उसके बाद उस पर नेट फोर्स लिख दो और वही आपका आंसर होगा। सही बात है या नहीं। तो थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दीजिए, तो नेट फोर्स कितना बनेगा, kx प्लस एक्स नोट, यहां लिख लेते हैं। नेट फोर्स कितना बनेगा इस पे, kx प्लस एक्स नोट, स्प्रिंग फोर्स अभी, ठीक है, और ऑलरेडी नीचे mg है जो kx के बराबर था, ठीक, तो ये आपका नेट फोर्स हो गया, सही है। और यहां से kx से kx कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स आ गया kx नोट के इक्वल। तो वहां से आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना, आप एक f को ले सकते हो ma विच इज इक्वल टू kx नोट, तो a हो जाएगा k बाई एम x नोट। तो यहां से x नोट कौन सा था, जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट में दे रहा हूं ब्लॉक को, समझ में आ रहा है ना, x नोट इज द एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट विच आई एम गिविंग टू दिस ब्लॉक, ठीक। अच्छा हाँ जयराम सही है बिल्कुल, mg बाई, टाइम पीरियड तो आपने फिर डायमेंशन उल्टा लिख दिया, टाइम पीरियड पूछा है ना आपसे, तो mg बाई के लिखना है आपको। अब ये k बाई एम हो गया ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई के, सॉरी मैं उल्टा बोल गया था, सही था आपका m ही होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए 2 पाई अंडर रूट m बाई के डायमेंशनली करेक्ट नहीं था वो, दैट वाज डायमेंशनली करेक्ट, सॉरी, सही बात है। सो दैट इज अ फ्रीक्वेंसी जो आपने लिखा है वो हाँ ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी लिख दिया आपने, 1/2 पाई हो जाएगा उसमें, ठीक, सॉरी कोई बात नहीं। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई के, दिस इज द राइट आंसर। तो सिंपल एक क्वेश्चन था। तो अब कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया जाए, जल्दी से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, जो कि एक बढ़िया क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पकड़ देना और वहां से सोल्व करना है इसको, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से एम्पलीट्यूड बताना है और मैक्सिमम मोमेंटम बताना है 6 kg ब्लॉक का। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो आज का सेशन यहीं तक था। तो एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, इंस्टासोल चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक है t.me/instajee, ज्वाइन कर लीजिए। सब PDF सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहेगा और जो भी इंफॉर्मेशन है सारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया। टेलीग्राम पे t.me/instajee। जो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।